Hello everyone and welcome to Manual Education. So today we will be discussing about Indian Contract Act. Now, before we go ahead with our lecture, I would like you to introduce to our batches. So if you are preparing for any of your law entrance exams and you aim to score very good marks and get into the top colleges, then we are here to help you. We provide live classroom teachings and we also have recorded videos for you. Many doubt sessions or any of your doubts will be resolved by us. We have over 10,000 plus questions on every topic and free mentorship, that is guidance, is provided to you. Apart from that, we also conduct mock tests, topic tests. We have a WhatsApp group over which you will get immediate help each and every time you need. So what are you waiting for? We have centers at Dadar, Borivali and Vasai, and we also provide online coaching. So you can book your seats right now with us on this number. Alright, so now let us begin. So Indian Contract Act. Indian Contract Act is one of our oldest acts. Okay, it came in 1872. Now if you see in this slide, it was enacted and commenced. Okay, now what is enactment and commencement? So see, when a law is made, it is not immediately implemented or immediately commenced. Okay, why so? देखिए, if I introduce a law from today that plastic will be banned and carrying plastic is punishable, okay, and मैं आज के आज ही उसे commence कर दूँ, if I implement it today itself and if I catch you with a plastic and I fine you, will that be right? No, right? So laws are made on a specific date and introduced or started, or let's say commenced, okay, or implemented from a certain date. Okay, so ये law बन के तैयार कौन से दिन हुआ? 25th April 1872 and लागू कब से हुआ या implement कब से हुआ? So 1st September 1872. Okay, now if you see 1872 मतलब तब कौन राज कर रहा था हम पे? Right, Britishers, right? So Indian Contract Act जो है, it is majorly taken from the British law itself. तो अगर आप देखोगे तो it is almost similar to the British law. Yes, हमने बाद में थोड़े improvements किए, many changes have been made, but it was initially taken from the British law. Okay, now Indian Contract Act. Okay, अगर आप laws देखो तो there are many kinds of laws, right? क्रिमिनल लॉज होते हैं, फैमिली लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, लेबर लॉज, देर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ लॉज. सो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये किस में आता है? तो दिस कम्स इन बिजनेस लॉ, ओके, और यू कैन से कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दिस इज द बेसिक एक्ट जो आपको पता होनी चाहिए. सो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट कम्स इन आवर माइंड? एक कोई तो लिखा हुआ पेपर जिस पे दो लोगों ने साइन किया है. डू यू थिंक ऑलवेज वही कॉन्ट्रैक्ट होता है? नो. सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन ईदर बी ओरल और रिटन. मतलब अगर हम ओरली कुछ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रिटर्न होना चाहिए, बट इट इज़ प्रेफर्ड और इट इज़ एडवाइजेबल कि कॉन्ट्रैक्ट आप लिखित ही करो, रिटन कॉन्ट्रैक्ट करो. व्हाई? बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रूव इन द कोर्ट. ठीक है, एविडेंस के तौर पे हमारे पास ईज आ जाता है, वेर एज ओरल कॉन्ट्रैक्ट में वी लैक एविडेंस, या फिर हमारा एविडेंस जो है वो पुअर एविडेंस हो जाता है. ऑलराइट, दैट इज वाई यूजुअली लोग रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? तो दो लोग आ गए और बन गया? नो, देयर इज अ स्पेसिफिक चेन जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो की जाती है. सो लेट अस सी कि ये क्या प्रोसेस होती है. देखिए, सबसे पहले देयर शुड बी एन ऑफर. नाउ व्हाट इज एन ऑफर? लेट्स से आई ऑफर यू that I want to sell this pen to you. Will you buy this pen from me? This is an offer. So what is an offer? It is my willingness. I am signifying to you. मैं आपको ये signify कर रही हूँ या आपको ये जता रही हूँ that I am willing, कि मेरी इच्छा है आपसे कुछ करवाने की या कुछ ना करवाने की. So it can be to do something or not do something, right? So I am expressing कि will you buy this from me? Or I will say
will you stop buying those pens from that man, I'll give you XYZ amount. ओके, सो कुछ करवाने की या ना करवाने की ऑफर मैं आपको दे रही हूँ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑफर. नाउ अगर हम ऑफर की बात करें तो ऑफर शुड ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड. मैं मन में ही आपको ऑफर तो दे नहीं सकती, इट शुड बी कम्युनिकेटेड. ओके, एंड ऑफर के भी बहुत सारे टाइप्स है दैट वी विल डिस्कस लेटर. नाउ आफ्टर आई मेक एन ऑफर टू यू, ओके, व्हाट आर द टू possible outcomes? You will either accept it or you will reject it. अगर ऑफर रिजेक्ट हो गई तो बात ही खत्म हो गई, राइट. बट अगर मेरी ऑफर एक्सेप्ट हो गई, इफ माई ऑफर इज एक्सेप्टेड, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस. सो गाइज, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अ प्रॉमिस. ओके, नाउ दिस जो चेन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, लॉ पर्सपेक्टिव. ओके, सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉमिस. ठीक है, एक प्रॉमिस हो गई हमारे बीच. नाउ विद दिस प्रॉमिस, ऐसे ही प्रॉमिस थोड़ी चलेगी, देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए. दैट बेनिफिट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. अब ये कंसिडरेशन क्या है? सो कंसिडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न, व्हाट आई गेट इन रिटर्न एंड व्हाट यू गेट इन रिटर्न. जैसे कि इफ आई सेल यू दिस पेन, ओके, सो दिस पेन इज कंसिडरेशन फॉर यू, क्योंकि आपको ये पेन मिल रहा है, राइट, एंड यू विल गिव मी मनी, दैट मनी इज कंसिडरेशन फॉर मी. सो आपके लिए ये पेन कंसिडरेशन, मेरे लिए आपका मनी कंसिडरेशन. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू कि कंसिडरेशन मीन्स डज नॉट ओनली मीन मनी. ठीक है, कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता. ओके, कंसिडरेशन कैन बी मनी, कैन बी अ थिंग, कैन बी अ सर्विस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लेक्चर एंड आप उसके लिए मुझे पेमेंट कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे योर पेमेंट इज कंसिडरेशन फॉर मी, लेकिन क्या मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ? नो. क्या मैं आपको पैसा दे रही हूँ? नो. आई एम ओनली गिविंग यू अ सर्विस, राइट. सो अ सर्विस कैन ऑल्सो बी कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी मनी और इट कैन बी सर्विस. ऑल राइट. सो कंसिडरेशन कितना होता है, क्या होता है, दैट डजेंट मैटर, दैट इज अप टू अस. हम जो डिसाइड करें दैट इज कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन होना जरूरी है. द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर आवर कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़ते हैं. सो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है? होती है अपनी एग्रीमेंट. ओके, सो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाए तब हो जाती है एग्रीमेंट. मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, लेकिन ये सेम नहीं होता. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में देर आर 3 टाइप्स. ओके, कितने टाइप्स? 3 टाइप्स. नाउ व्हाट आर दिस 3 टाइप्स इन एग्रीमेंट? एक होता है सोशल एग्रीमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज अ सोशल एग्रीमेंट? दैट एग्रीमेंट जो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ या ऐसे ही कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्स सेड टू वाई कि अगर तुम मेरे साथ मूवी के लिए आओगे, आई विल गिव यू अ शॉर्मा, ओके, और आई विल गिव यू अ ट्रीट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स इज आस्किंग वाई टू कम ऑन अ मूवी एंड वाई विल गेट अ ट्रीट इन रिटर्न. सो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, दोनों को कंसिडरेशन भी मिल रहा है, मूवी एंड ट्रीट. बट दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट. अभी अगर वाई मूवी के लिए नहीं आया तो एक्स विल नॉट टेक हिम टू द कोर्ट, राइट. ऐसे तो बहुत सारे प्रोमिसेस हम आए दिन करते हैं. So these promises or these agreements are not legal agreements, these are nothing but social agreement. Second type हमारी जो आती है that is domestic agreement. Now what is domestic agreement? Domestic agreement is something जो हम घर में करते हैं. सोचो मम्मी ने आपके पापा को कुछ प्रॉमिस कर दिया या आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस कर दिया that if you get high scores in your entrance exam we will give you an iPhone, okay? सो ऐसे सब प्रोमिसेस तो बहुत होते हैं, पर अगर नहीं मिला, कैन यू टेक योर पेरेंट्स टू कोर्ट? नो, बिकॉज दीज आर नथिंग बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स. आए दिन ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते रहते हैं. तो विच एग्रीमेंट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल एग्रीमेंट्स एंड दीज लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. सो लीगल एग्रीमेंट्स के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि स्ट्रेंजर्स के बीच में ही लीगल एग्रीमेंट हो. लीगल एग्रीमेंट कैन ऑल्सो बी विद इन फ्रेंड्स और विद इन फैमिली. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज द इंटेंशन. हमारा इंटेंशन क्या है? हमने ऐसे ही मजाक में कुछ एग्रीमेंट कर दी और डिड वी हैव अ लीगल इंटेंशन? अब मैम लीगल इंटेंशन कैसे समझेगा? सो येस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन कोर्ट, बट द इंटेंशन इज एसेंशियल.
सो सेम फ्रेंड एक्स एंड वाई अगर एक दूसरे के साथ कुछ लीगल एग्रीमेंट करे, लेट्स से वन वांट्स टू सेल अनदर अ लैपटॉप एंड द सेकंड वन विल बाय फ्रॉम हिम, दिस बिकम्स अ लीगल एग्रीमेंट. ओके, सो द इंटेंशन मैटर्स. अगर लीगल इंटेंशन हो, ठीक है, लीगल इंटेंशन मौजूद हो, देन इट बिकम्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ. नाउ व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? ये देखिए फोर्स. ओके, मतलब लॉ आप पे वो फोर्स करेगा. ओके, व्हेन लॉ फोर्सेस समथिंग ऑन यू, इट इज सेड एनफोर्सिएबल बाय लॉ. सो अगर वाई मूवी के लिए नहीं गया तो लॉ कांट एनफोर्स इट ऑन हिम, राइट? लॉ ऐसे नहीं बोलेगा कि यू गो टू द मूवी बिकॉज यू प्रोमिस्ड. बट द सेम थिंग, अगर मैंने लैपटॉप बेचा एंड द आगे वाला पर्सन, सामने वाला पर्सन इज नॉट गिविंग मी द मनी फॉर इट, राइट, इन रिटर्न, नाउ यहाँ पे कोर्ट्स विल एनफोर्स इट अपॉन हिम. सो एग्रीमेंट जो लीगल होती है, जिसमें लीगल इंटेंशन होता है, विल बी एनफोर्स्ड बाय लॉ एंड ओनली सच एग्रीमेंट्स आर नथिंग बट आर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, so this entire chain is essential for forming a contract. Okay, so this is how a contract is formed. Now इसमें अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें रहती है, like कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर कंसेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफर्स क्या होती है. देयर इज अ वाइड वैरायटी टू लर्न, देयर आर मेनी टॉपिक्स टू लर्न इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो if you are interested to learn law with us, so this is about us, Manual Education. If you are preparing for law entrance exams 2022-2023, then you can join our online live classes, or you can also take classroom coaching from us at Mumbai. We have centers in Borivali, Vasai and Dadar. For more information, you can visit our website, that is www.manuvereducation.com, or you can follow our social media handles, YouTube, Facebook, Instagram, or you can even join our Telegram handle. So all of these links are given in the description below. Now hurry up and join us to learn more with us. That's all for now. Thank you and let's meet in the next video.